لو نتكلم على الصيام شهر في السنة، وبعد ذلك الأجر. ولو نتكلم على الحج بعد 5 أيام أو 6 أيام الناس يذهبون إلى بيوتهم. ولكن نتكلم على مصير الأمة، مصير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في كوهات وليس في باكستان بل في العالم كله. نحن اجتمعنا، الذي جاء يوم الخميس والذي جاء خارج في سبيل الله هو جاء من أجل الدعوة. أي هي الدعوة هذه؟ माशाअल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह, हम जो इधर बैठे हैं, ये जो हमारा मुज़ाकरा है, ये मुज़ाकरा किस बात का मुज़ाकरा है? अगर ये मुज़ाकरा हमारा ये ज़कात का है तो ज़कात माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा लोग देते हैं। और इसी तरह अगर हमारा मुज़ाकरा ये जो है ना वो हज का है तो हज साल में एक दफ़ा लोग करते हैं, जाते हैं। तो ये हमारा आपस में जो मुज़ाकरा है, ये मुज़ाकरा दीन का मुज़ाकरा है, ये इस्लाम का मुज़ाकरा है। ये जो हम जुमेरात वाले दिन सारे जमा होते हैं, ये जो मुज़ाकरा है ये दीन का मुज़ाकरा है। तमाम आलिम के बारे में सोच फिक्र का ये मुज़ाकरा है। أيها الأحباب الكرام، نحن اجتمعنا من أجل الدين، من أجل الدعوة، وهذه الدعوة من أول البشرية. والله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء والرسل على نبينا عليهم الصلاة والسلام ليذكروا هذا الإنسان بخالقهم. ولما يغفل هذا الإنسان الله يبعث نبي آخر إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل جلاله أحيا هذا الجهد المبارك في هذا الزمان. نحن نتكلم الآن وبيننا حول هذه الدعوة. ما هي هذه الدعوة وكيف نمشي فيها؟ الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. وقال جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. माशाअल्लाह। तो शेख साहब फरमाने लगे कि ये जो हमारा मुज़ाकरा है ये सारे के सारे आलिम के लिए मुज़ाकरा है। तो फिर शेख साहब ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद फरमाने लगे कि अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने तमाम अंबिया इकराम जो हैं उनको इस काम के लिए मबऊस किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने इस काम के लिए मबऊस किया। फिर अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते रहे, पैदर पे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते रहे और इस बात की, इस दीन के लोगों को दावत देते रहे। أيها المشايخ الكرام، إنما أعظم الجزاء ما أعظم البلاء، لأن الدعوة ليس شيء مستقر حسب أفكار الناس وحسب تحول الناس. الإنسان يحول فكره وجهده حول الناس، حول الأفكار البشرية. كيف البشرية تستقيم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ तो शेख साहब फरमाने लगे कि ये जो दावत शान की ज़ात ने हमें दी है, ये दावत वो मेहनत है कि ये इसका ठहराव नहीं है, और ये वो दावत है कि जो दावत वो रास्ता है कि वो रास्ता जिस रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं, उस रास्ते पे जब हम किसी को दावत देंगे तो उस रास्ते को ऊपर दावत देने की वजह से फिर अल्लाह जल्ल शान की ज़ात हम उसमें हमें फ़ायदा भी देंगे। أيها المشايخ الكرام، هذه الدعوة لنا ولكم ولأبنائنا وأبنائكم ولجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
والذي اعتمد على غير الله الله بين حاله. يقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال الله جل جلاله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العظيم. أيها الأحباب الكرام، نحن هذا منهج الدعوة لا يتغير، مقصده إعلاء كلمة الله. ولأن إعلاء كلمة الله أين؟ في الجدران مكتوب إعلاء كلمة الله في قلوبنا، لأن هذا جهد القلوب. نغير قلوبنا من المخلوق إلى الخالق، ومن الدنيا إلى الآخرة، ومن الأشياء إلى الأعمال. هذه دعوة الأنبياء على النبي عليه الصلاة والسلام من بداية البشرية إلى يوم القيامة. فالآن هذه دعوة مقصود كيف نمشي في هذه، كيف نحن كلنا माशाल्लाह। तो शेख साहब फरमाने लगे कि ये जो अल्लाह ताला शान की ज़ात ने हमें दावत दी है, ये दावत हम सब के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है और हमारी आने वाली जो नस्लों के लिए दावत है। तो ये दावत का काम जो बहुत बड़ा काम है। फिर फरमाया कि कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला शान की ज़ात ने फरमाया कि जो ये दावत वाला काम करते हैं तो ये एक क्या उसका नाम है, एक छोटा सा जानवर, उसकी मिसाल दी है कि वो उसका घोंसला बनाते हैं और जो दावत वाला काम छोड़ बैठते हैं वो उसको काट डालते हैं। फिर इसी तरह फरमाने लगे कि अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने दावत वाली जो मेहनत ये जो दी है, इस मेहनत के बारे में अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने बहुत बड़े इनाम भी रखे हैं। أيها المشايخ الكرام، الله سبحانه وتعالى أحيا هذا الجهد في هذا الزمان، وأحيا لتذكير المسلمين بالمقصد الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجله. وكيف نحن في هذا الزمان نمشي على لأن لكل شيء له أصوله، وهذه الدعوة لها أصول، وأصول هذه الدعوة أيها المشايخ الكرام، أصول هذه الدعوة فيها حفاظة الدعوة والداعي، فيها حفاظة الدعوة والداعي، لأن الداعي يمشي مطمئن في الدعوة إذا كان لا يمشي على حسب هواه ولا يمشي حسب الأطماع. لأن المؤمنين ماذا؟ نحن لا نطمع في المخلوق، أي مخلوق أي كان الله جل جلاله هو الرزاق، الله جل جلاله هو المعطي، الله جل جلاله هو المنع. المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. المؤمنين أمام الله ليس أمام المخلوق يدعونه إلى الخالق. فلهذا أيها الأحباب الكرام علينا نتحرك في هذه الدعوة، ولأن كل واحد منا يفتش نفسه. نحن لا واحد يفتش واحد، كل واحد يفتش نفسه كيف يمشي بهذه الدعوة، ماذا يريد. الذي جاء يوم الخميس، والذي خارج في سبيل الله، والذي خرج والذي نصر، لأي مقصد؟ قلنا مقصد إعلاء كلمة الله جل جلاله. دائما يكون أمامنا كما قال الله جل جلاله: فلتنظر نفس ما قدمت لغد. يكون أمامنا الآخرة، فإذا كانت أمامنا الآخرة فيقول لعله هذا كلام شيخ إلياس رحمه الله ونور الله مرقده: بطن الدين الإيمان والاحتساب، بطن الدين الإيمان والاحتساب. माशाल्लाह जी। तो शेख साहब बताने लगे कि ये जो अल्लाह की शान की ज़ात ने दावत वाला जो हमें काम दिया है, तो ये दावत उस तरतीब है उस पे करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। तो ये तरतीब वो तरतीब है कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम और इसी तरह जो मौला इलियास रहमतुल्लाह तआला की जो तरतीब है उस पे काम करेंगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो दाई है, जो दावत देने वाला है, जो दावत का काम करने वाला है, ये किसी भी इतबार से मुतमिन नहीं होता। ये क्या करता है कि दाई दावत देता है, लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालता है,
और फरमाने लगे शेख साहब कि अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने इस मेहनत के साथ जो हमें ये जोड़ दिया है, इस मेहनत के साथ जोड़ने की निस्बत बहुत बड़ी है। इस वजह से मौलाना इलियास रहमतुल्लाह तआला फरमाने लगे कि ये जो काम है, ये जो दाई जो मेहनत करता है, ये मेहनत जो है ये बतलुल उम्मा है कि इस उम्मत का ये काम का ये एक गोद है बहुत बड़ी। أيها المشايخ الكرام، لو نميل يمينا أو شمالا نكون في الخسران. لو نميل على أصول هذه الدعوة وترتيباتها. انظروا، لأن لكل دعوة لها أصول، والله جل جلاله ما نزل في القرآن أي شيء إلا لهذه الأمة لتأخذ العبرة. وقال لهم نبيهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل. الذي يميل يمين شمالا هو يكون تلبس بالباطل، والباطل لا يقاوم الباطل، يكون معه. الذي يميل يمينا أو شمالا عن هذه الدعوة وعن منهجها. نحن نريد من هذا الكلام كما احنا أخذنا الدعوة من مشايخنا من رحمه الله ونور الله مرقده، ومن بقي بارك الله في عمره أطال الله عمره وبارك فيه. أخذناها حقيقية، أخذنا الدعوة حقيقية، مقصودها رضا الله جل جلاله، مقصودها نصرة الله سبحانه وتعالى. فاحنا نحن لو نحن نموت لا ندري كم بقينا في هذه الدنيا، نترك الحق على وجه الأرض بهذه الدعوة إن شاء الله إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. तो शेख साहब फरमाते हैं ये जो मेहनत है, मेहनत एक तरतीब के साथ है, तो तरतीब के साथ जो चलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और फरमाया कि अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने कुरान के अंदर मिसाल दी है कि एक गिरोह जा रहा था और उसके साथ वक़्त का नबी भी था, और अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने फरमाया कि यहाँ से पानी बिल्कुल नहीं पीना, अगर किसी ने पानी पीना है तो सिर्फ 1 या 2 घूंट, जो ज़्यादा पिएगा उसका नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने थोड़ा सा पिया उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने उनकी प्यास जो है ना बुझा दी। लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने ज़्यादा पी लिया तो उनके पेट ना बढ़े। और शेख साहब फरमा रहे हैं कि ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह तआला ने जो मेहनत दी है, उनका जो काम है, जो तरतीब है, ये तरतीब ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। मशरिक से मगरिब तक हर जगह ये मेहनत हमने इसको लेके जाना है। वो तो अपनी मेहनत करके चलेंगे, रात एक लगा कर चलेंगे, और अल्लाह जल्ल शानू जो हमारे बड़े काबिर हैं और उलमा इकराम हैं, अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात इनकी उम्र में बरकत आ फरमाए, तो ये इस मेहनत में लगे हुए हैं और हमने भी इस मेहनत को क्या करना है, सारी दुनिया में लेकर जाना है। أيها المشايخ الكرام، لا نعتمد على أنفسنا بل نعتمد على الله. انظروا غزوة بدر الكبرى لسمية الفرقان، صحابة قليل وما خرج للحرب، ولكن الكلام طويل، الله نصرهم. انظروا حنين، غزوة حنين كم المسلمين؟ يقول الله أعلم وعلمها أتم 6 نفر، جاء في قلوبهم نحن لأن كثير، فالله جل جلاله ما نصرهم. الله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نريد الله يكون في نصرتنا، نكون نفتش، بس الإنسان يفتش نفسه لا يفتش غيره. ماذا يريد؟ لماذا يتحرك؟ من أجل الهداية، من أجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نرضى أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. لا، الذي يرضى الذي لا يتبع الأصول ولا يتبع مشايخ الكبار ولا يتبع هدايات، هذا ما هو؟ هذا يتبع الهوى ويخلده إلى الأرض. هذا يعني إشارات. ثم تقرأوا القرآن وعندكم ما شاء الله علماء
بارك الله في حياتهم تفهموا كل شيء. ولكن الإشارة أننا لا نزيغ قدر أنولا عن منهج النبوة ومنهج النبوة. هذاك منهج النبوة. الآن هذا ليس إدخال المسلمين في الإسلام. المسلمين هم مسلمين، ولكن أين هي صفة الإسلام عالمي؟ نحن نتكلم عموما. माशाल्लाह शेख साहब फरमाते हैं ये दावत है, इस दावत के अंदर मुतमईनपन नहीं है बिल्कुल कि भाई इस दावत को देना है और आगे से आगे निकलना है, आगे से आगे हमने बढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत देनी है। फरमाने लगे कि हम देखें कि ये कितनी कब्रें हैं जो बड़ी बड़ी हैं और अंबिया सहाबा कराम के हम वाक़े पढ़े कि हुनैन का वाक़ा हम पढ़े और बाकी जो बदर है जितने भी वाक़े हम उनको पढ़े। देखो तो सही कि किस तरह वो काम करके गए हैं और ये काम वो है कि जो तरतीब के साथ है और बगैर तरतीब के ही काम नहीं है। और अल्लाह ताला शान की ज़ात भी उस काम को पसंद करते हैं जो तरतीब के साथ हो। अगर एक बंदा जो हिदायत के खिलाफ काम करेगा, तरतीब से काम नहीं करेगा, उसकी दावत ऐसे है कि जैसे सिर्फ खाली हवा ही है, नहीं है। तो तरतीब जो है, सबसे पहले तरतीब के ऊपर चलना होगा, फिर हमारी इस मेहनत का हमें फ़ायदा होगा। और हमारे अल्लाह ताला शान की ज़ात तो वो है कि जिसको हमारी किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है और हमें तो अल्लाह ताला शान की ज़ात की ज़रूरत है। तो ये जो हमने काम करना है इस जो है तरतीब है उसके साथ करना है। أيها المشايخ الكرام، هذه الدعوة علاجنا علاج القلوب، علاج الإيمان. لو الإيمان قوي أعمالنا موجودة فيها قوة، لو إيمان ضعيف أعمال موجودة لكن فاشلة. ولو الإنسان يكون فاشل، ممكن فاشل ضعيف منهزم، ممكن بالآخر يستسلم. نحن لا نستسلم أبدا ولا يبقى الإنسان وحده، لأن الله سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة إلى الموت. ليس معناه 3 أيام أو 4 أشهر أو سنة أو قل أو سنة. هذا الخروج لمعرفة مقصد وجودنا. نحن الآن المسلم لا يعرف مقصد وجوده، ولكن مقصد الخروج لو يعرف الإنسان مقصد وجوده ما هناك 4 أشهر ولا سنة. هناك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى الموت، لله رب العالمين ليس للمخلوق. فهذا نعيش على هذا المنهج. الله سبحانه وتعالى قال لنا هذه فرصة الحياة، فهذه فرصة الحياة لا نضيعها. لا ندري كم بقى لنا في هذه الدنيا. فلهذا بارك الله فيكم نجدد الإيمان ونجدد الفكر وكيف نمشي في هذه الدعوة، وكل واحد يفتش نفسه وداخله وأعماله. كلنا ما فينا واحد هو يعني عنده قابضة أمام الله. اقرأوا سورة فاطر، قريب سورة يونس، ياسين. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معناه كلنا لا ننجى إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا بارك الله فيكم نكون مستعدين لجميع الترتيبات ونرتب حياتنا حسب الدين حسب الدعوة. لا نرتب الحياة حسب البيت، لأن الخروج في سبيل الله. فهمتوا؟ तो माशाल्लाह शेख साहब फरमा रहे हैं कि जो हमें खड़ा करने वाली है, जो चीज़ हमें मजबूत बनाने वाली है, वो क्या चीज़ है? को वो ये दावत है कि दावत जब हम देंगे, दावत के ऊपर हम जब अमल करेंगे, दावत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो ये हमारा इतिहार है, ये हमें खड़ा करेगी। और अगर दावत नहीं देंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो दूर तक चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने मजबूत करना है, अपने आप को खड़ा करना है, इस दावत के ऊपर हमने अपने आप को खड़ा करना है। और ये दावत ऐसे है कि हमें किसी को नहीं देखना, सिर्फ ये दावत अल्लाह का काम है। हमने अल्लाह जल्ल शान की ज़ात के लिए दावत देनी है, अल्लाह जल्ल शान की ज़ात को सामने रख के हमने लोगों को दावत देनी है, अल्लाह को देखना है। और फरमाने लगे कि अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने जो थोड़ी सी हमें ज़िंदगी दी है, कि कई बड़े ऐसे हमारे बड़े हैं जो छोड़ के चले गए,
और अल्लाह जल्ल शान की ज़ात जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसके अंदर बरकत अता फरमाए कि अल्लाह जल्ल हमारी भी ज़िंदगी का पता नहीं है कितनी ज़िंदगी है, लेकिन हमने भी अल्लाह जल्ल शान के पास जाना है। तो इससे पहले हमने क्या करना है, अपने ईमान को और अपने यकीन को पुख्ता करके लेके जाना है। जिस तरतीब पे के हजरात हमें काम बताते हैं उस तरतीब पे हमने इस काम को करके जाना है। और क्या करना है, इस काम की जो नीयत है वो सारा आलम है, सारा आलम है। फरमाने लगे कुरान की आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरा जीना और मरना किसके लिए है, वो अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात के लिए है जो तमाम जहानों का, जो आलमीन का जो रब है। أيها المشايخ الكرام، ما هو الخروج في سبيل الله؟ من فطرة جهد الدين خلاف البيت، خلاف النفس، خلاف الناس، خلاف البيت، خلاف النفس، خلاف الناس. الناس لا يريد تذهب عندهم لجهد الدين لأن تغير مزاجهم الدنيوي، ولكن نحن نذهب مهما كانت الأحوال وما كلف الزمن. نحن لا نريد منهم شيء، نريد منهم كيف يخرجوا من هذه الدنيا والله راضي عنهم. المقصد الذي خلقهم الله من أجله نرغب الناس، نرغب الناس. والهداية بيد الله، الهداية بيد الله. نحن نسمع له أذنه، والذي يسمع قلبه هو الله جل جلاله. الذي يسمع قلبه هو الله، أما نحن نسمع الأذن. بارك الله فيكم. तो शेख साहब फरमाने लगे कि ये जो दावत है ये क्या है, ये दावत जो है ना, ये जो हम लोगों को दावत, ये तीन चीज़ों के खिलाफ है। दावत जो हम देते हैं कि इंसान के, ये नंबर 1 नफ्स के खिलाफ है, और नंबर 2 ये जो दावत जो हम देते हैं घर के खिलाफ है, और नंबर 3 जो हम तीसरी जो चीज़ देते हैं वो के लोगों के खिलाफ। के इसके उल्ट कि जब हम घर से निकलते हैं नफ्स को के मुजाहिदा होता है और बोझ पड़ता है, और घर वालों को ऊपर मुजाहिदा होता है, उनकी कुर्बानी होती है। और तीसरी चीज़ के लोगों को जब हम दावत देते हैं तो लोग अजीब अजीब सोचते हैं। तो ये जो दावत है कि हम जब लोगों को फिर जब देते हैं तो हमें अल्लाह जल्ल शान की ज़ात को सामने रख के दावत देनी है। कैसे कि अल्लाह जल्ल शान के ज़ात के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह जल्ल शान की ज़ात सुन रहा है, अल्लाह जल्ल शान की ज़ात में बुलवा रहा है। तो जब हम इस तरह लोगों को दावत देंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। أيها المشايخ الكرام، خلاف الناس، نحن أولا ضعفاء أميون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في ربنا جل جلاله؟ ماذا يطلب من الناس؟ لا يطلب الأشياء، لأن الدين كله لنا. الله غني، الله لا يحتاج إلى عبادتنا. الدين لنا، وجود لنا لأنفسنا ليس لأحد. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم مع الناس، يواجهه بكلام عنيف. والله بين، الله جل من فوق 7 سماوات يقول الله سبحانه وتعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نحن؟ هذا هو العلم. وإن لنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه هداية للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تبالي بمن يعارض ولا من يوافق. الذي وافق لنفسه والذي يعارض هذا بينه وبين الله. माशाल्लाह जी। कि ये जो दावत है ये नफ्स जो है ना लोगों के खिलाफ कैसे है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी, और दावत किस चीज़ की दी है भाई कि अल्लाह को मान लो, अल्लाह की मान लो, ये तो दावत दी है उन्होंने। तो फिर अल्लाह जल्ल शान की ज़ात की पहचान करवाए कि अल्लाह वो है कि जो निज़ाम को चलाने वाले हैं, उसके हाथ में सब कुछ अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह करने वाले हैं, सिर्फ वही है। आपने क्या करना, उनकी बात को मानना है। तो क्या ये लोगों के जो है नफ्स के खिलाफ जब दावत दे रहे हैं
तो फिर क्या है कि हालात आए लोगों की तरफ से, लेकिन फिर दाई क्या करता है कि दाई फिर मुतवज्जे किसकी तरफ होते हैं? अल्लाह जल्ल शान की तरफ। तो फिर क्या, अल्लाह के नबी ने दावत दी, लोगों को दावत देते रहे। फिर जब हालात आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल शान की तरफ मुतवज्जे होते रहे। तो फिर अल्लाह जल्ल शान की ज़ात ने क्या फरमाया कि तुमने क्या करना है, तुमने इन लोगों को दावत देनी है और सुबह शाम अल्लाह जल्ल शान की पाकी बयान करनी है, और सजदे में गिर गिरा कर तुमने क्या करना है, तुमने इन अल्लाह से मांगना है, इन लोगों के लिए मांगना है। तो ये जो दावत वाला जो काम है, तो इस तरह हमने इस काम को करना है। अय्युहल मशाइख किराम,